Students, welcome to my English literature class of grade 7th. Students, before commencing the chapter, first of all, we will take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Students, let's start with the chapter number 5, Eco and Narcissus. Students, we will continue with this chapter. In the last video, we have covered this chapter up to page number 66. Today, we will continue with this chapter from first paragraph. They went on in this way for some time. वो कुछ टाइम उस वे की तरफ जाते रहे. Narcissus parting the branches in search of his comrades and Eco stealing softly behind him until the boy called out, "Is there anyone here?" And Eco answered, "Here." जब वो वही रास्ते गए, कुछ टाइम के लिए वो वही रास्ते जाते रहे. नार्सिसस जो थी, उसने जो ब्रांचेस थे उसमें सर्च किया कॉमरेड्स को. कॉमरेड्स मैंने आपको बताया था कि जो लोग होते हैं, फ्रेंड्स और पीपल, जो सेम एरिया या सेम चीज़ों को बिलोंग करते हैं, फ्रेंड्स और पीपल बिलोंगिंग टू द सेम क्लेन. तो वो उनको सर्च कर रहा था. एंड इको स्टीलिंग सॉफ्टली बिहाइंड हिम, जो इको था वो भी उसके बिहाइंड में था. Until the boy called out, जब तक बॉय ने कॉल नहीं किया. इज़ देयर एनीवन हियर, तो उसने बोला कि इज़ देयर, कोई है वहाँ पे. एंड इको आंसर्ड, इको ने, जब उस बॉय ने उसको कॉल किया, इज़ देयर एनीवन हियर, तो इको ने आंसर किया हियर. द बॉय वाज bewildered, तो जो बॉय था वो बहुत कंफ्यूज हो गया जब उसने कहा हेयर, बिकॉज ही कुड नॉट सी एनी मोर, क्योंकि वो उसको देख नहीं पा रहा था. टू होम द वॉइस कुड बिलोंग, किसको वॉइस वो बिलोंग कर रही है. एवरी क्राई ऑफ हिज was answered and the voice seemed very near, और हर क्राई उसकी आंसर कर रही थी, पर जो वो वॉइस थी वो उसके नियर आ रही थी. एट लास्ट Narcissus, who was getting very impatient, called, "Let us come together." जो बहुत impatient थी, फिर उसने एंड में क्या कहा, "Let us come together," हमें एक साथ होना चाहिए. Eco ran to meet him, Eco जो था उसको भागा भागा मिलने गया. But Narcissus pushed her aside roughly and फ्लैट फर्दर इनटू द वुड्स. उसने रफली उसको पुश कर दिया. जब वो उसको खुशी खुशी से मिलने गया, उसने पर उसको पुश कर दिया और उसने उसको वुड्स में पुश कर दिया. पुअर इको, उसने बोला, पुअर इको, हिज अनकाइंड लुक्स हैड हर्ट हर डीपली एंड शी हैड हरसेल्फ इन द वुड्स एंड माउंड एंड ग्रीड. तो जब उसने कहा पुअर इको, तो उसको बहुत सैडनेस फील हुई. माउंड का मतलब होता है एक्सट्रीमली जब हम सैड होते हैं. जब उसने कहा अनकाइंड लुक्स, जो उसकी अनकाइंड लुक है उसको बहुत हर्टली डीप किया, तो वो बहुत उसको सैडनेस फील हुई, उसको बहुत हर्ट हुआ और वो उसने अपने आप को हाइड कर लिया वुड्स के बीच में. शी ग्रू पेल एंड थिन एंड बिगैन टू वेस्ट अवे टू द शैडो अंटिल एट लास्ट हर बॉडी वैनिश्ड ऑल टुगेदर एंड नथिंग बट हर वॉइस रिमेन्ड. Since she lies hidden in the woods, but her voice is still. उसने अपने को वुड्स में तो हाइड कर लिया था, बट उसकी जो वॉइस थी वो स्टिल आ रही थी. Heard among the hills, जो हिल्स में सुनाई दे रही थी. Answering to every call, सब आंसर कर रही थी. जो उसको बुला रहे थे, कॉल कर रहे थे, उनको आंसर कर रही थी. Narcissus, who was so cold to poor, वो बहुत कोल हो गई उस पुअर इको से. And indeed to all who loved him fell in love with himself and in a very strange way. Narcissus was very fond of hunting, वो बहुत फाउंड थी हंटिंग के लिए. One day he had been tracking the game through the forest for many hours and at last, worn out with the heat and exercise, he came to a shady spot in the woods where hidden among the
low bushes there was little spring. The water was as crystal as clear, and Narcissus stopped to drink from it. But suddenly he pushed in wonder, for reflected in the smooth surface was the most beautiful face he had ever seen. He looked at it, ever growing surprise, and more he looked, the fairer did the face seem. Narcissus had at last fallen in love, but it was with his own reflection. सो जो नेरेसिस थी वो फाउंड थी हंटिंग के लिए. एक दिन वो ट्रैकिंग के लिए गई, उसने गेम प्ले की फॉरेस्ट में बहुत आवर्स के लिए. एंड फिर क्या हुआ, वॉर्न आउट विद द हीट एंड एक्सरसाइज ही केम टू द शेडी स्पॉट इन द वुड्स. जब बहुत उसको हीट लगी, गर्मी लगी, तो वो शेडी वुड्स के नीचे आई, जहाँ पे उसने अपने आप को हिडन कर लिया, हाइड कर लिया लो बुशेस के नीचे. वहाँ पे थोड़ी स्प्रिंग थी, लिटिल स्प्रिंग थी. जो वाटर था वो भी क्रिस्टल क्लियर था. एंड जो नेरेसिस थी वो स्टूप्ड होगी. स्टूप्ड का मतलब क्या होता है, जब फॉरवर्ड और बेंड करते हैं हम आगे की तरफ, नीचे की तरफ. बट सडनली ही पॉज इन वॉन्डर, तो उसने अपने को पॉज कर लिया. फॉर रिफ्लेक्टेड इन द स्मूथ सरफेस वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस ही हैड एवर सीन. जब वो पानी के पास ड्रिंक करने गई, नीचे की तरफ गई, आगे गई, वो नीचे की तरफ हुई, उसने अपनी शेडो देखी. वो उसकी अपनी शेडो थी, अपनी रिफ्लेक्शन थी जो उसको पानी में दिख रही थी. सी हियर इन दिस पिक्चर, she just see her shadow in the water when she moved forward and bent downward, and she saw her shadow in the water. He looked at it, every growing surprise, and more he looked, the fairer did the face seem. जितनी वो पास में देख रही थी उतना ही उसको वो शेडो में रिफ्लेक्शन उसको क्लियर दिख रही थी, और उसका जो फेस था वो क्लियरली शो हो रहा था. Narcissus had at last fallen in love, वो फॉल हो गई लव में. बट इट वॉज विद हिज ओन रिफ्लेक्शन, वो उसका खुद की रिफ्लेक्शन थी. He spoke to the beautiful images, and lips in the pool seemed to be answering him. तो वो स्पोक करने लगी अपने लिप्स के साथ, और वो एंड इन द पूल सीम टू बी आंसरिंग हिम, और जो वो पूल था वो उसको आंसर कर रहा था. बट नो साउंड कुड बी हेयर, उसको कोई साउंड हेयर नहीं हो रही थी. ही स्माइल एंड द टू स्टेरी आई स्माइल बैक एट हिम. जैसे ही वो स्माइल करता था तो वैसे ही उसको स्माइल वापस आ रही थी. व्हेन ही बैकन का मतलब क्या होता है, सिग्नल जो देता है, सिग्नल टू कम क्लोज़र, जो सिग्नल हमें क्लोज करता है, सिग्नल मिलता है क्लोज आने के लिए. द इमेज बैकन टू, जैसे वो पास में आ रही थी तो इमेज उसको वो जो दिख रही थी वो भी उसके पास में ही आ रही थी. When he tried to touch it, जब उसको टच कर रही थी, it disappeared, वो डिसअपियर हो जाती थी from view, वो दिखना बंद हो जाती थी. That was because when the water was repelled by his touch, the image became blurred. But when the water was still, the face was again seen in all its loveliness. तो जब वो पानी को टच करती थी तो उसको दिखाई देना पड़ जाता था, डिसअपियर हो जाता था उसका फेस, और नहीं उसको उसके अपनी शेडो से, उसको मतलब रिफ्लेक्शन से वो उसको अपना फेस दिखाई देता था. ही लॉस्ट ऑल डिज़ायर फॉर फूड और स्लीप, वो सारी उसने अपनी डिज़ायर लॉस्ट कर ली थी फूड और स्लीप के लिए. एंड डे एंड नाइट ही ले अपॉन द ग्रास गेजिंग एट इट्स ओन इमेज रिफ्लेक्टेड इन द वाटर. वो डे एंड नाइट अपनी ही इमेज में को देखती थी उस पानी में. When Apollo, the son of God, guided his morning chariot over the hills, the face in the pool seemed touched with a golden light, which made it more beautiful than ever. And the night when Diana, the goddesses of moon, drove her silver car through the heavens, the poor boy could scarcely breathe for marveling at the beauty of his own face. Slowly he began to pine away. The red left his cheeks, and his body grew thinner and thinner until at last he died. तो क्या हुआ, उसकी जो डिज़ायर थी फूड के लिए, डे और नाइट सब ख़त्म होगी, और उसने अपने आप को ग्रास के ऊपर ले कर लिया, और वो अपनी ही इमेज को, रिफ्लेक्टेड इमेज को वाटर में देखता था. जब जो सन ऑफ गॉड था अपोलो, उसने मॉर्निंग हुई
उसने चैरट किया ओवर द हिल्स, जो उसका फेस था पूल में, जब उसने टच किया विद गोल्डन लाइट तो वो बहुत ब्यूटीफुल दिखने लगा। और नाइट में भी जो गॉडेसेस ऑफ मून थी डियाना, उसने भी जब अपनी सिल्वर कार को उसने थ्रो किया हेवन से, तो जो पुअर बॉय था वो स्कार्सली ब्रीथ करने लग गया। तो स्लोली वो पाइन अवे हो गया, वीक होता गया, और जो उसकी रेड लेफ्ट चीक थी बॉडी में वो थिनर होने लगी, पतली होने लगी, अनटिल फिर वो लास्ट में डाई हो गया, मर गया। द नेम्स ऑफ द रिवर एंड द वुड्स ऑल मॉन्ड फॉर देयर डेड फ्रेंड। तो सारे जो वो नेम्स थे रिवर एंड वुड्स के, वो मतलब उसको उनके अपनी फ्रेंड की जो डेथ थी उसका बहुत दुख लगा, सैड फील हुआ। दे मेड प्रेपरेशंस फॉर हिज फनरल, उन्होंने प्रेपरेशन की उसके फनरल के लिए। बट व्हेन दे वेंट टू कैरी हिज बॉडी टू द फनरल पेरी, जब उसके बॉडी को फनरल के लिए लेके गए, दे डिस्कवर्ड दैट द बॉडी ऑफ द डेड यूथ हैड डिसअपियर्ड। जो बॉडी थी वो डिसअपियर होगी, वहाँ पे थी नहीं। इन इट्स प्लेस देयर स्टूड अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वहाँ पे उसकी जगह जहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी थी वहाँ पे एक ब्यूटीफुल फ्लावर था विद ब्राइट गोल्डन सेंटर एंड सॉफ्ट वाइट पेटल्स विच नोडेड टू इट्स रिफ्लेक्शन इन द पूल। एंड टू दिस डे द लवली फ्लावर कॉल्ड द नर्सिस इज फाउंड बाय क्वाइट पूल्स गेजिंग एट इट्स इमेज इन द वाटर। तो वहाँ पे जब उसकी बॉडी को फनरल के लिए उसके फ्रेंड्स लेने गए तो वहाँ पे बॉडी थी नहीं, तो वहाँ पे एक वाइट कलर के फ्लावर्स थे जिनके सेंटर में ब्राइट गोल्डन कलर था। सी हियर इन दिस पिक्चर, फ्लावर्स थे वाइट कलर के, उसके बीच में एक ऑरेंज कलर का, गोल्डन कलर का वहाँ पे सेंटर में था उनके बीच में फ्लावर्स के। तो वहाँ पे उस पूल के बीच में वो जो थे फ्लावर्स ग्रो हो गए। तो और उस डे से जो वो लवली फ्लावर था उसको नर्सिस का नाम दिया गया। उसी दिन से जहाँ से वो फ्लावर ग्रो हुआ, जिसका कलर सेंटर में से गोल्डन कलर का था, तो उस फ्लावर को नाम नर्सिस दिया गया उस दिन से। So students, this is all about the story. I hope all of you have understood. Thank you. Have a nice day.